وہ ٹھیک ٹھیک کر رہے ایک بندہ چلا جاؤ ساتھ ساتھ وہ ویڈیو بنا آپ لوگ پیچھے آپ نا جاؤ ویڈیو بنا سو جاؤ میں اوپر جاؤں ہاں نہیں جا سکتے بھائی اپنے دو آدمی نیچے بھیجو بات کرنے کے لیے محب ادھر عبدالعزیز میں بنا رہا ہوں آپ لوگوں نے نظر آ رہے ہاں آپ کو معلوم نہیں آپ کدھر سے بات کر رہے ہیں ہم پیچھے ہیں پاکستان کی حدود میں پاکستان کی حدود میں ہم بس ٹھیک ہے حدود ہے ہماری جی ہو جوانو کم چاہے بھائی حرکت کرو پیچھے حرکت کرو وہ بنا رہے تھے وہ ویڈیو بنا رہا ہے نا اوپر آپ لوگ بھی جاؤ پیچھے آپ لوگ بھی پیچھے جائیں ٹھیک ہے صبح بھی آپ لوگ آئے صبح بھی پیچھے چلو آپ بولے بھائی یہ چلے جائیں بس آپ پیچھے میرے کو نہیں بول سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں اختلاف نیوز دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں آزاد کشمیر ضلع کوٹلی تحصیل نکیال میں اور یہاں آج سے ایک دن پہلے کل کا واقعہ ہے کہ جو انڈین آرمی نے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی اور ان لوگوں نے آگے سے ان کے ساتھ ایسے مقابلہ کیا کہ جیسے اللہ کے مجاہد کرتے ہیں. یہ ہے پارا کوٹ میں بالکل یہ ایل او سی کے اوپر کھڑا ہوں اور میرے 10 گز کے ساتھ یہ ایل او سی ہے. یہ جو سامنے آپ یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایل او سی کے اوپر ہی ہیں. اور میں نے جو آپ کو پوسٹ پہلے دکھائی ہے وہ انڈین آرمی کی میں نے پوسٹ دکھائی ہے اور اس کے ساتھ یہ بالکل ایل او سی کے اوپر میں کھڑا ہوں. اور اگر میرے اس طرف اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھانا چاہے تو یہ جو ایل او سی کے اوپر گھر ہے راجہ سردار اعظم صاحب کا یہ ان کا گھر ہے اور بالکل ایل او سی کے اوپر رہتے ہیں. ان کے گھر سے بارڈر کا اگر ایریا اگر دیکھا جائے تو وہ 20 گز ہے. تو ہم آج لے کے چلتے ہیں آپ کو ان کے پاس اور اپنے ان دلیروں کی ان اپنے جاں بازوں کی ان اپنے مجاہدوں کی ان اپنے شیر جوانوں سے آپ کی بات کروائیں گے اور دکھائیں گے کہ انہوں نے ان کا راستہ کیسے روکا. ہماری مائیں بھی اس میں شامل تھی, ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں بھی اس میں شامل تھی اور انہوں نے کس دیدہ دلیری کے ساتھ انڈین آرمی کو روکا. یہ ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو لے کے ان کے پاس چلیں گے. آئے ہمارے ساتھ چلیں. جی ناظرین اساں اس وقت بیٹھے ہیں سردار اعظم صاحب کو جڑے اس وقت معذور انہیں تو تکنے بھی پہ ہو بالکل ایل او سی نے پر انہوں نے گھر ہے کل نے جڑے وقوعے نے اینی شاید اور اتوں بہت ہے یہ ساری چیز تکنے سن پہ. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ.
सरदार साहब कल जड़ा कुछ होया है तुसां दी अखां ने सामने आया तो अपनी ज़बान ही दसो कि क्या होया। जनाब मोहतरम ये लोगों जड़ा जड़ी वो बच्चियां सी उन्होंने कहा कीमती खरीदिया न सिया सरदार रफीक खान नी मलकीत रकबे चू ये पार जड़ा रकबा है ये तुसां दा मलकीयत है, मलकीत रकबे न कितना आया ये कम अज कम 14 तो 1500 कनार रकबा बनना 1400-1500 कनार रकबा बनना जड़ा इंडियन जड़ी है वो दबाव विच अपने चाहनी चाहनी लिहाजा असें कतन नहीं हो सकना कि असें इंडिया की छोड़ सा। एक कल जुड़ा वाकया होया ये बच्चियां घाह कट्टने आस्तै अजें जाहिर जिसियां कि उन्हें अग्गें अम्बुश लैन सी अम्बुश लैन सी कुदरती भैया एक साढ़ा पिछू आगे गया मगर तो उन्हें जूं ही देखा उसी तो वो जड़ी पिछे उसकी प्रोटेक्शन जड़ा अम्बुश लगाना सिया वो अग्गे बंदे बैठे सन कम अज कम 4 तो 5 आदमी अग्गे खोले ही बैठे सन उत्थे साढ़ा खंबा लगा बिजली ना उसने मकान का बर्बाद होया उसी बैठे सन और वो जो ही वो बंदा आगे जाना सी तो इंडियन आर्मी ने क्या कम किया कि वो जी प्रोटेक्शन पिछले अगे सी उस फायर करी छोड़िया जो ही उस फायर किया तो फायर ही वो बंदा भी खुद फौजी सिया सबका रिटायर है उस एकदम एक कम किया कि अपनी पोजीशन ली तो सब कुछ जवाबी कार्रवाई शुरू करी छोड़ी। जवाबी कार्रवाई च कम होया कि जवाबी कार्रवाई उसने कोई मेरे ख्याल एक आधा खतरी जड़ा वो मरदार भी हुई मरी आ तो कोई जख्मी होए असें जिथे तक साढ़ा जड़ा ये अपना चूंकि चुक्की खड़िया ने तो चुक्की खड़ने ने वाजह पता ही है चलना कि तुसाने कोलो इथों 100 गज पार सामने आया था नजर भी आना बिल्कुल इतने सामने नजर आना सर वो तो बिल्कुल वाजह नजर पीछे पूरी आवाम देखिया एक तो मैं तो देखा पूरी आवाम देखा बाकायदगी ने आवाम देखा कि इतना जड़ा खतरी आए और उन्होंने पर फायर होया और उन्हें फिर ये समझ साड़ी कोई नहीं कि साड़ी आर्मी किस तरह था फौरन पहुँच गई। अल्लाह ने बड़ा कारम है और साड़ी आर्मी इतनी जंगजू है अल्लाह ने बड़ा एहसान है साड़ी आर्मी पर के ज़मीना जो पैदा हुई या आसमान पर आई बैक वक्त उत्थे आर्मी साड़ी मौके पर पहुंच गई अपने बंदे नी प्रोटेक्शन वास्ते अपनी जेडी आर्मी है वो फौरन उस मौके ने पर पहुंची है मौके पर पहुंच गई तुसें समझ नहीं आई है कि कुदरू निकले ने नहीं आई ये समझ नहीं आई कि साड़ी ये आर्मी साड़ी किस पासू आई किस पासू आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर साड़ी आवाम ही बहुत नाडर लोग हैं बाद फिर उन्हें ये काम किया कि जो पहले वो मरदार हो या कि उन्हें चुकी पीछे गए बाद वो झंडा लैके आ गए और बहुत उन्होंने नफरी आई जिस फिर दोबारा साड़ी नफरी जी पोस्टम पर आई वापस दोबारा आई और उस अवाम में किया कि अवाम ने जज्बात अपने पर कंट्रोल नहीं होया तो अवाम पिछू आर्मी अपनी ने नाल मगर गई थी बिल्कुल कि असा आर्मी तू पहले असा शहीदों सो आर्मी साड़ी ने शहीद ये जड़े बॉर्डर पर लड़न वाले लोग कश्मीर ने पाकिस्तान ने बिला तनख्वाह सपाई ने ये अपनी जाना तुसा आप भी जख्मी हो। बिल्कुल मैं जख्मी हूँ सर 21 साल थू मैं इस इंडियन आर्मी की वजह थू मैं जख्मी हूँ 21 साल हो गए 21 साल तो तुसा माजूर हो इस इंडिया आर्मी ने तुसा ने फायर ने नाल ये फायर ना मैं माजूर हूँ और इस हालत पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने माड़ा पर करम एहसान है और आज तक मैंने लोग कहने कि कार छोड़ दे मैं कार ना छोड़ना इस वक्त अगर ये कार छोड़िया और इंडियन आर्मी जी है उसने ये LOC है सर बात ये LOC है LOC ने माना होना कि लाइन ऑफ कंट्रोल जिथे तक इंडिया ने कंट्रोल है वो इंडिया नहीं है असा इस वजह कंट्रोल नहीं छोड़नी असा अपने इलाके ना ये जज्बात साढ़े ये गल जज्बात कह जी असा ईमान है साढ़ा असा इस मादरे वतन की खातर अपनी जाना कुर्बान करी छोड़सा लेकिन कतन पिछे ना हटने। इस तो पहले शहीद भी कितने हुए तुसा ने इस इलाके मेरा भैया अताउल्ला खान यानी मैं अगर गिनती करा ना तो ना मुनासिब इतना गिनती ना कर सकना मेरे घर नहीं मेरी वाइफ जड़ी है जख्मी मेरिया बेटियां जख्मी मेरे बैल भैंस इवन के कुत्ता भी जख्मी हुई है क्या बाकी रहा तो जज्बा फिर भी नहीं इंशाअल्लाह आखिर दम तक ये जगह नहीं छोड़नी। मस्जिद बनाई है वालिद मोहतरम ने और बड़ी तगोदे नाल मस्जिद बनाई मदरसा इतना अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां हिफज करनी सन कर रहे सन और फिर दोबारा इंशाअल्लाह बच्चियां सन हिफज इथु जिस वक्त अल्लाह अकबर नहीं अजान होनी है तो वो पार उन्हें पोस्टर पर सुनने सारे सर खतरी एक दफ़ा ये गल कही कि ठहर मैं तुझे अल्लाह से डायरेक्ट मिलाता हूँ और मेरे वालिद मोहतरम अजान उन्होंने मैं फिर बा आवाज़ बुलंद मारी आवाज़ भी अल्लाह ने बड़ी अच्छी दी थी बा आवाज़ बुलंद अजान देना और इस अजान की वजह तो मजरूब होया ना। बहुत शुक्रिया। इस वक्त असाने कोल और भी बंदे बैठे हुए जेड़े कल उस जड़ा कल मुकाबला जिन्हें किया है जेड़े उस जड़ा कल हादसा होया जड़ा इंडियन आर्मी ने जेड़े नाकाब जेड़े अजायम सन नाकाम उन्होंने किते उन्होंने जेड़े नापाक अजायम उन्होंने पर उन्हें मिट्टी पाई है वो भी इस वक्त मौजूद नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी क्या नाम सुना? आसिफ अताउल्ला जी कल तुसा उत्थे मौके ने पर मौजूद सो? जी बिल्कुल मैं और 2-3 बंदे असां जेड़े स्टार्ट च आए भाई भी बैठे बड़े
ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੱਕੀ ਦਾ ਅਸਾਂ ਆਇਆ ਮਸਜਿਦ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਪਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ 3-4 ਮਿੰਟ ਨੇ ਦੌਰਾਨੀਆ ਆर्मी ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ और आर्मी ने दौरानिया असां सारे जितने भी सिविल लोग से असां आर्मी ने शाना बिशाना खड़े हुई तो उन्होंने नाल गए हैं दुश्मन का मुकाबला करने मौके पर असां पहुँचे हैं तो दुश्मन ये ललकार सी कि आप LOC के अंदर आ गए हैं और अगर आपने ऊपर आए हैं तो मैं आपको फायर शूट कर दूंगा। तो उस पर साड़ी आर्मी ने अल्फासन के हम आपको बताते हैं कि शूट कैसे करते हैं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल से नीचे हैं, ठीक है। तो फिर हमारी जो आर्मी थी उन्होंने बड़े जोश व जज्बे के साथ दुश्मन का मुकाबला किया है। पहले तो लफ्ज़ी बातचीत होती रही है, बाद में वहाँ पे सिविल जितने भी थे नौजवान की आदत उसमें बुज़ुर्ग भी थे, ख़वातीन भी पीछे बैकअप पे मतलब बपर्दा थी, तो उन्होंने एक दूसरे का बड़ा अच्छी तरह मुकाबला किया। नौजवान जो थे आर्मी के शाना बिशाना थे। वहाँ पे जब हम ऊपर गए तो दुश्मन ने जब हमें देखा है नौजवान भी साथ हैं तो वो थोड़े से डर गए थे। ज़ाहिर बात है जब अल्लाह अकबर की सदा गूंज रही हो, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लग रहे हों, तो फिर मेरा ख्याल है कि दुश्मन तो कमज़ोर होना ही था। तो दुश्मन की कमज़ोरी की वजह यही थी जब उन्होंने झंडा लहराया, झंडा लहरा के जब वो आ रहे थे तो नौजवानों ने कहा जी कि हम आपको 3 मिनट देते हैं। आर्मी भी मौके पे हमारी मौजूद थी, मैं खुद वहाँ पे नारे लगाता रहा हूँ। आप कल जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो में वो वीडियो भी आपने बनाई है और आपको भी कहा जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से कि ये वीडियो मत बनाओ, मगर आप भी आगे से जवाब देते हैं, कुछ क्लियर नहीं है, क्या कह रहे थे वो? मैं सर उन्हें ये कह रहा था जी कि आप मुझे मना ना करें, आप भी तो वीडियो बना रहे हैं और मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं वीडियो हर सूरत पे शूट करूंगा। और मैं अपनी आर्मी के साथ 1-2 नौजवान जो बिल्कुल उनके साथ बातचीत कर रहे थे, मैं बिल्कुल उनके साथ भी उनकी वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन बाद में मैंने अपलोड नहीं की कि मुल्की हालात व वाक़यात की वजह से थोड़ा सा डर भी गया था कि शायद कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। तो इस वजह से बाद में जब काफ़ी कोई 1.5 घंटे की दौरानिया मुसाफत जो थी आर्मी, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की गुफ्तगू आपस में रही है इनकी मुज़ाकरात के हवाले से, तो हमारी आर्मी ने यही कहा है उन्हें जी कि आप नीचे क्यों आए हैं, LOC क्रॉस आपने क्यों की है, LOC से नीचे क्यों आए हैं और LOC क्रॉस क्यों किया है, वो वीडियो शूट करते रहे। और हमारे जो दलेर थे यहाँ पर, जो बहादुर थे, जो गजूर हैं इस धरती आज़ाद कश्मीर के, बेटे हैं जो इस मुल्क के, उन्होंने शूटिंग किया और वो एक हिंदू को मर्दार भी किया और 3-4 वो अपने ज़ख्मी भी उठा के इधर से गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सुना? मोहम्मद आकिब। जी आकिब भाई, तुसा भी कल इत्थे सो, तुसा सुनो। जी बिल्कुल, मैं इस गल्ला पर इतफाक करना जिन्ना बड़े भाई ने मड़े इन्ना सारियां गल्लां क्लीयर ही कीतियां। मेन चीज़ ये सी जी कि हिंदू दरअसल साड़ी आर्मी थोड़ा सा पिछा रही सी, लेकिन साढ़े जेह्ड़े सिविल आबादी सी ना, सिविल आबादी हिंदू नी बिल्कुल नज़दीक भी 25 गज ने फासले पर पहुंची गए सन। तो साढ़े अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान 150-200 नौजवान से जेड़ा बगैर इन थी साड़ी आर्मी थी सपोर्ट थी बगैर कि जदों हले नहीं से पहुंचे साढ़े नौजवान उत्थे पहुंचिए तो उन्होंने पर वो मुद्दा बोलन लगे सन। फिर असां उन्हें मना किया कि हले सब्र करो, आर्मी ने इंतजार करो। आर्मी आई, खैर आर्मी साड़ा बहुत अच्छा डिफेंस किया। उसकी बाद काफरां दा इक मुतालबा सा कि सिविल अब जेड़े अगे सिविल गए ने इन्हें बैक करो तो फिर असां तुसां नाल गलबात करसां गलबात करसां। तो साड़ा इ'यै उन्होंने नाल इक ऐसा कि तुसां बैक जो तो असां बैक ना जाने। फिर साढ़े आर्मी दी वजह नाल असां बैक होए हां। फिर इन्होंने मुतालबा आया, उन्होंने सफ़ेद झंडा लहराया। सफ़ेद झंडे ना उन्होंने इ'यै सिस्टम सा कि उसका मतलब ही इ'यै सा कि असां आपस च बेता कोई गलबात करो। तो जदों गलबात हुई साढ़े आर्मी ने नौजवान अलहमदुल्ला भरपूर तरीके नाल साढ़े नाल तावल किया, गलबात हुई तो फिर वो बैक गेट ही साढ़े भी आई थी। तो हूँ दूआ ही जी मेन टारगेट सी असां अवाम तक गल पहुँचाना चाहते सी। तो माशाअल्लाह असां तुसां इख्तलाफ न्यूज़ वाले बंदे इत्थे पहुँचे, इत्थे कोई बंदा असें बाकी न्यूज़ वाले नाल भी रबता किया, कोई असें सपोर्ट नहीं मिली। तो असां तुसां नूं भरपूर मशकूर हां कि तुसां इस इलाके पर पहुँचे हो। तो असां जेह्ड़ा पैगाम देना चाहते वो यह कि हिंदू तरफों ये जड़ा नाला आ ये वो बार्डर तस्वर करना पिया। तो असां अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके बंदे इस चीज़ा ना मज़हब हो करने कि असां इस चीज़ा ने खिलाफ हाँ कि असां इस चीज़ा ही बार्डर तस्वर ना करने पे। बार्डर तो पार तुसा ने मकान है ना, उत्थे बिजली नहीं लेना लगी है ना, उत्थे खंबे लगे हुए ना, तुसा ने जमीन पार सारी जिंदगी तुसा 74 साल तो तुसा उत्थे काश्तकारी करने पे हो। अज जो आनी दा अगर आखने पे असां कि असां इंसान दा वो तो नामुमकिन चीज़ है। बिल्कुल सर, असां ये साढ़े अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब भी मेरे
मुजाहिद अव्वल ने ते उन्हें भी इ'यै चीज़ आही कि पहली गोली मैं सीने पर खासां ते उस दी बाद दूए दिन असां अल्हम्दुलिल्लाह कफन सिरर बन्नी अपना भरपूर तरीके नाल उत्थे पहुंचे हैं, लेकिन उन काफरें इतनी जरूरत नहीं कि साढ़े मुसलमानों नाल ओह मुकाबला करन। असें अल्हम्दुलिल्लाह साढ़ा ईमान और कलमे दी ताकत साढ़े अंदर इतनी एक है कि असां हिंदू 50 भी है या 100 भी है तो असें किसी ना डर नहीं है। तो बरका असां इ'यै मेन चीज़ है कि साड़ी ये बार्डर ना बनाई जाए, साढ़े नाल तावन किया जाए ते नाला बार्डर के लिए ना की जाए। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी आवाज़ ये अहकाम बाला तक भी पहुंच चुकी है। और हम कैसे इसको LOC मान लें, ये वहाँ इसको कैसे कहें कि हम ये पार अपनी 1500 कनाल ज़मीन हम उनको दे दें और वो हमारी उस ज़मीन के ऊपर काबूज़ हो जाएं। सीज़ फायर का मतलब ये तो नहीं होता है कि आप दूसरे की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करें। दुश्मन मुल्क को हम कैसे इजाज़त दें सीज़ फायर की आड़ में कि आप आएँ और कब्ज़े करना शुरू हो जाएं। वो सीज़ फायर ऐसे नहीं होते हैं। अब यहाँ की आवाम सोई हुई नहीं है, ये आवाम भी जागी हुई है और ये पाकिस्तान आर्मी भी जागी हुई है। अपने एक एक चप्पे का, एक एक इंच का ये दफा करना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। हिंदू ये चीज़ अपने जहन से निकाल दे, उसकी ये आर्मी अपने जहन से निकाल दे कि हम पाकिस्तान की आर्मी से पहले पाकिस्तान की आवाम से टक्कर लेना पड़ेगी उसको। पाकिस्तान की आवाम में इतना जोश है, मैं आपको मिलाऊंगा यहाँ खित्ता कश्मीर की उन माओं से, उन बहनों से, उन बेटियों से कि जिन्होंने अपने इस जगह का दफा किया और कैसे किया। सर इसमें मैं थोड़ी सी क्लोज करी नो कुर्सी रखी ना या फिर जी खाला जी असन भाई ये बयान या नाला जाए ये नहीं तो बार्डर रखनी बिल्कुल सारियां जमीनां पार अस नाला दे तो फिर अस क्या करा कोई चारा दसो। कल तुसा भी कहा जेड़े कपना वास्ते गए सन बुनो दा नहीं असी निकाल नहीं वाकफी लम्बी छोड़ी तरना पारवाना पार जगह है तुसा नहीं है ना तो पार खवातीन भी ऐसा कल जेड़े कहा कपना वास्ते जाने सन पे हाँ हाँ कीमती किंदे ने उन्हें कहा कीमती किंदे ने पार फिर लंबरदार है क्या उस चले ने कहा हफीज नंबरदार ना कहा रफीक नंबरदार ना कहा सर तो मुल्ले चला बेचन द दुनिया वो काक ओ ए रंदी बीबी ने किया लिया है 1.5 लाख रुपए का घास सेल करते हैं। ये हमारे बुजुर्ग इधर रहते हैं, इन्होंने अपनी आंखों से ये सारा मुद्दा देखा है, सारी इन्होंने सब कुछ देखा। ये यही कहते हैं कि हम जो ये नाला बॉर्डर वो करना चाहते हैं, हमें हर गिज अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे और ये हम बॉर्डर नहीं बनाने देंगे। ए तुसा इत्थे इन्होंने को डर को नहीं लगना था पार गोलियां तड़ी राती फायर करने अल्लाह ताला ना राती तो डरने हां डर था वो कपसन क्या करसन डर नहीं ना जिने बंदे की हाँ मगर अल्लाह ताला सुन वो असा रखे ना नहीं चाहता भरोसा उसने अल्लाह ने। हमें सिर्फ भरोसा रब की ज़ात का है जी, बाकी हमें किसी का भरोसा नहीं है। और हिंदू को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तुझ में इतनी जरूरत नहीं है कि तू इस तरह बुज़दिला हरकतें करके इस तरह हमारे सिविल्स के या आर्मी को या इस तरह का कोई दहशत फैलाए। अगर तुझ में जरूरत है तो ऑनलाइन आके हमारे सिविल आर्मी को छोड़, आर्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिफेंस है, आर्मी को छोड़कर हम सिविलों से मुकाबला करके दिखा। बड़ी बात है किसा का नया मुकाबले ये गली अगर आर्मी ना आवनी देना जेड़े थे हसन सिविल मुंडे ना मारी खड़ो ना उन्हें नहीं सुन छोड़ने हाँ बिल्कुल सिर्फ चंडा से पाक आर्मी को हमारा सल्यूट है जी, वो हमारे साथ हर मुश्किल में खड़े हैं। और पाक आर्मी जिंदाबाद। और आप इख्तलाफ न्यूज़ का भी बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस बॉर्डर पे आके हमारा साथ तावन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तुसा खाला जी कोई आखिर पर आखो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नबी ने भाई हूँ क्या करी सकनी है असी आखने पाई ये नाला ना देने बिल्कुल अपनी तो असा इंच एक इंच भी जगह ना देने किसी की किया किसी ने प्यो नहीं है। आहो आपने जितना थे फिर की नहीं रहने बुन टले तो टले किसे जा। ठीक है जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी, यहाँ पर मर्द ख्वातीन की गुफ्तगू आपने सुनी, आपने ये नतीजा देखा और इनके जज्बात देखे। जो गैरतमंद कौमें होती हैं उनके अंदर ये जज्बा होता है और जिस कौम में इस तरह का जज्बा हो तो उसको कैसे कोई शिकस्त दे सकता है, चाहे वो हिंदू तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। दुनिया की सुपर पावरें भी आ जाए, हम सुपर पावर अल्लाह की ज़ात को मानते हैं भाई, अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं मानते हम सुपर पावर। हमें ना कोई डरा सकता है ना धमका सकता है, हम अपने एक एक इंच का जो है ना दफा करना अच्छे तरीके से जानते हैं। और जिन जवानों के अंदर इस तरह का जज्बा हो, जिन्होंने निहत्ते जवानों ने, एक के हाथ में सिर्फ एक कलाशनकोव थी, उसने जो जाती अपना असला रखा हुआ था। हैरानगी की बात है कि ज़मीन भी उसकी है, मकान भी उसका है,
बिजली भी वहाँ पर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने लगा के उसको दी हुई है, और इंडियन आर्मी कह रही है कि आज ये हमारी जगह है, ये जगह छोड़ दो। भाई क्यों, कैसे छोड़ें, क्यों छोड़ें? तू कौन होता है हमें यहाँ से ये चीज़ कहने वाला? और अगर आज़ाद कश्मीर में यहाँ पर अगर आर्मी, अगर अपनी पाक आर्मी अगर यहाँ पर आके अपने सिविलियन को पीछे ना करती, तो इन सिविलियन ने उनकी पोस्ट भी तबाह कर देनी थी। ये जो उस दिन इनके अंदर वो जो जज्बा था, वीडियो जो वायरल हुई है उसके ऊपर आपने देखा कि कैसे निहत्ते बिल्कुल खाली हाथों से, काफर है तो रखता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो लड़ता है बेतेग सिपाही। हमें, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारी तोपें, ना तलवारें, ना हम तुम्हारे जो मज़ाइल हैं वो भी तुम अपने पास संभाल के रखो। हम खाली हाथी नारा तकबीर अल्लाह अकबर, जब ये नारा लगा देते हैं तो फिर हम किसी को भी नहीं देखते हैं, हमें कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर अल्लाह ताला अबाबील भी हमारी उस कामयाबी के लिए, हमारी नुसरत के लिए, हमारी इमदाद के लिए वो अबाबील भी भेजता है, वो फरिश्ते भी भेजता है। जज्बा होना चाहिए सिर्फ कौम के अंदर, और ये जज्बा कल यहाँ पर जो इन्होंने दिखाया पूरी दुनिया ने देखा। और आज इख्तलाफ न्यूज़ यहाँ पर इनको इस जज्बे के ऊपर खराज तहसीन पेश करने के लिए आया है। बिजा तौर पर ये इस मुल्क और कौम के बेटे हैं, ये बहादुर बेटियां, बहादुर बेटे इस मुल्क और कौम का सरमाया है। पाकिस्तान की ये सीसा पलाई वो दीवार हैं जो बिला तनख्वाह सपाई है और अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। जैसे वो बुजुर्ग कह रहे थे, सरदार आजम साहब कह रहे थे कि अगर मैं शहदा के नाम गिनती करना शुरू कर दूं तो बड़ी लंबी तवील लिस्ट होगी। इतने ज़्यादा लोग इनके यहाँ पर शहीद हो चुके हैं, मगर ये अपने 10 गज क्या चीज़ है, और 10 गज LOC के ऊपर ये दूर वहाँ से बैठे हुए अपने मुल्क का दफा कर रहे हैं। ऐसे जज्बों को सलाम है, ऐसी बाहिम्मत ख्वातीन के जज्बों को सलाम है। और फिर जहाँ पर इस तरह की बात हालात हों और इस तरह की माएँ हों तो फिर बेटे भी इसी तरह के पैदा होते हैं, और ये कौम इन बेटों की हमेशा मकरूज रहेगी। अपने साथी कैमरामैन रिपोर्टर के साथ राजा तालब हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।